السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد اور میں ہوں آپ کے ساتھ منیز معین۔ اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ یعنی کہ 260% ہو گیا ہے اس کا بڑھ گیا، تو ایک ڈیٹ سروسنگ جو ہے بہت بڑا ہیڈ ہو گیا ہے پاکستان میں، اور ظاہر ہے کہ جس طرح ڈیٹ ایکیومولیٹ ہوتی رہے گی وہ ڈیٹ سروسنگ بڑھتی رہے گی۔ اور یہ بات اب آج کل تھوڑی سی میم بھی ہو چکی ہے کہ جب میں نے گزارش کری تھی اسمبلی کے اندر کہ عمران خان صاحب نے اتنا ڈیٹ لیا ہے جتنا کہ تمام وزرائے اعظم نے، لیاقت علی خان سے لے کر اور شاہد عباسی اور ناصر الملک تک جتنے وزرائے اعظم آئے 71 سال میں، جتنا قرض انہوں نے لیا ہے اس کا اکیلا عمران خان صاحب نے 4.25 سال میں اس کا 80% لیا۔ تو شوکت علیم صاحب نے کہا کہ نہیں ہم نے 80% نہیں لیا، ہم نے صرف 76% لیا ہے۔ تو ایکچولی وہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ کے اندر لاک ڈاؤن لگایا گیا، اور لاک ڈاؤن اس لیے لگایا گیا کہ دنیا کا یہ خیال تھا کہ وہ وبا کو پھیلنے سے صرف لاک ڈاؤن بچا سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر چائنا کا جو ووہان شہر تھا، ادھر ساری جگہ لاک ڈاؤن لگ گیا، اور میرے پہ بار بار یہاں اپوزیشن نے پریشر ڈالا کہ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن لگاؤ، اور ابھی بھی میری سٹیٹمنٹس ہوں گی۔ آپ میڈیا پہ آ کے دیکھیں کہ جب میں پرائم منسٹر تھا میں بار بار ایک چیز کہی کہ اگر میں سارا ملک کو لاک ڈاؤن کروں گا تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو کہ دہاڑی دار کا کیا بنے گا، جو سارا دن محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ جب آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے تو اس کی تو دہاڑی گئی، تو وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گا، اپنے گھر والوں کو کس طرح پیسہ لے کے آئے گا۔ میں نے ساری اپوزیشن والوں سے پوچھا تب، کیونکہ جب وہ سب سے زیادہ پریشر میرے پہ ڈال رہے تھے لاک ڈاؤن کا، اور میں ایک دفعہ ان سے جواب نہیں سنا کہ ان کا کیا بنے گا۔ اور میرا یہ میرا ایمان ہے کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے اس طبقے کی۔ کبھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیسے گزارا کریں گے۔ چائنا جیسے ملک میں تو وہ گھروں میں کھانا لے کے گئے، جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو شہر میں ووہان میں وہ گھروں کے اندر کھانا پہنچایا انہوں نے۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ ہم کیسے اپنے کمزور غریب طبقے کو ہم کیسے کھانا پہنچائیں گے، ہمارے پاس تو نہ وسائل ہے نہ انفراسٹرکچر ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ مجھے یہ ایسی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ عمران خان کے اوپر FIR کاٹنی چاہیے، یہ لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا، جو مرے گا وبا سے وہ عمران خان کی ذمہ داری۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، آج ساری دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ وہ 5 ملک جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے ملک کو وبا سے بھی بچایا، اپنے غریبوں کو بھی بچایا، اپنے ملک کی معیشت کو بھی بچایا، ان 5 ملک میں سے پاکستان ایک تھا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن پوری طرح نہیں لگایا، ہندوستان میں نریندر موڈی نے لگایا، اور وہاں ان کی جو دولت میں جو اضافہ ہو رہا تھا وہ -7% پہ چلا گیا، بے روزگاری بڑھ گئی، غربت بڑھی۔ وہاں ہم نے اپنے ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگائی، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی جگہ پہ لگائے، لیکن ہم نے نہ کنسٹرکشن سیکٹر کو بند ہونے دیا جو روزگار دیتا تھا لوگوں کو، نہ ہم نے اپنی زراعت کو متاثر ہونے دیا، اور نہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو روکا۔ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جب دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہم نے اپنی انڈسٹری کو چلنے دیا، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بڑھی، جس کی وجہ سے اللہ نے خاص کرم کیا اس ملک پہ کہ آخری 2 سالوں میں
5.6% اور دوسرے آخری سال میں 6% ملک کی دولت میں اضافہ ہوا, GDP گروتھ ریٹ ہوئی, اور ہم نے پیسے دیے. جو ابھی بات کی گئی کہ ہم نے 12,000 روپے 1.5 کروڑ خاندانوں کو پہنچایا, کیونکہ ہمیں پتا تھا نچلے طبقے میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور صرف یہ نہیں کیا, ہم نے مدد کی, ہم نے انڈسٹری کو پیسہ دیا کہ اپنی فیکٹریاں نہ بند کریں, بے روزگاری نہ کریں. ہم نے اپنے نچلے طبقے کو جو مینج کیا, دنیا نے اس کو مانا, ہمارے احساس پروگرام کو دنیا مانی. اور وہ جو مشکل وقت تھا, 1 صدی میں ایک دفعہ اتنی بڑا دنیا میں بحران آتا ہے, کرائسس آتا ہے, اس کو جس حکومت کو کہتے تھے اہل نہیں ہے, اس نے سب سے زیادہ اہلیت دنیا کے 190 ملکوں میں سے وہ 5 ملک تھے جن نے سب سے بہترین طریقے سے اپنی عوام کو بچایا, اپنے غریبوں کو بچایا, اپنی انڈسٹری بچائی, معیشت بچائی. اور میں یہ بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہم نے صرف یہ نہیں کیا. میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ سردیوں کی انتہا جب ہوتی تھی تو مزدور سڑکوں پہ سوئے ہوتے تھے, فٹ پاتھ پہ سوئے ہوتے تھے. ہم نے پہلی حکومت پاکستان کی تاریخ میں جس نے فیصلہ کیا کہ ہم پناہ گاہ بنائیں, اور یہ خاص مزدوروں کے لیے تھا کہ جو باہر سے پیسے دہاڑی کرنے آتے تھے, شہروں میں پیسہ مزدوری کرنے آتے تھے, ان کے لیے پناہ گاہ بنائیں. پناہ گاہ کے اندر ان کو وہ سو سکتے تھے, وہ نہا سکتے تھے, ان کو کھانا ملتا تھا صبح کا اور رات کا, تاکہ وہ جو بھی اپنی دہاڑی کمائیں وہ اپنے بچوں کو بھیج سکے, اپنے خاندانوں کو بھیج سکے. اس کے بعد یہ کہ پہلے ہم نے پختونخوا میں تھوڑے سے ایک نچلے طبقے کو صرف ہم نے شروع کی صحت کارڈ دینا, پھر ہم نے سارے پختونخوا میں, سارے پنجاب میں, سارے گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, جدھر جدھر ہماری گورنمنٹس تھی, ہم نے ساری گورنمنٹس کو ہیلتھ انشورنس یعنی صحت کارڈ دیا کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہو. اور سب سے بڑی بات کیا, وہ کسی بھی ہسپتال میں 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے تھے. یعنی کہ لاہور کے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ڈاکٹرز ہاسپٹل جدھر سب سے مہنگا علاج ہے, ادھر بھی ایک مزدور صحت کارڈ پہ جا کے اپنا دل کا آپریشن کروا سکتا تھا. یہ دفعہ پاکستان میں ہوا, نہیں تو بیچارہ غریب دھکے کھاتا ہے سرکاری ہسپتالوں میں اور امیر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا تھا. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے اپنے عام لوگوں تک, جو سب سے مشکل ایک گھرانے پہ جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب بیماری ہوتی ہے اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا علاج کا, وہ ایک پورا گھرانہ قرضے لیتا ہے اور غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے سارا گھرانہ. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پروٹیکٹ کریں, تحفظ دیں اپنے اس طبقے کو جو صرف اور صرف بیماری کی وجہ سے سارا گھرانہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا. تو ہیلتھ کارڈ دیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. پھر ہم نے کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان اور کامیاب جوان میں ہم نے قرضے کا فیصلہ کیا. نوجوانوں کو سود کے بغیر قرضے دینا. ہم نے پہلے نیچے سے شروع کر رہے تھے, 25 لاکھ خاندانوں کو جن کو ہم سود کے بغیر قرضے شہر میں تاکہ اپنی دکان یا کاروبار شروع کر سکے. کسانوں کو دیا,
अपनी जमीन पे लगा सके, क्योंकि किसानों को, छोटे किसान को सबसे मुश्किल होता है, उसको वो बड़े सूद के ऊपर कर्जे लेता है, तो हमने उसको सूद के बगैर कर्जे दिए। हमने फिर 25 लाख घरानों को सूद के बगैर घर के लिए कर्जे दिए कि अपना घर बना सके। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा आज आप सबके लिए कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि एक हुकूमत जो आई थी सिर्फ अपने लोगों के लिए, जिसका जीना मरना, जिसके लीडर का जीना मरना पाकिस्तान में है, उसमें क्या फर्क है? और इन पिछले 30 सालों में जो दो खानदानों ने इसके ऊपर हुकूमत की है, जो अब इकट्ठे हो गए हैं, पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाते थे चोरी के, आज वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। फर्क क्या है? इनके लीडरान के पैसे, जायदाद, बिजनेस, छुट्टियां, इलाज मुल्क से बाहर है। और इसीलिए इनको अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं। ये कंट्रोल हो सकते हैं, ये लोग कंट्रोल हो सकते हैं। ये जब भी जिधर इनका पैसा है उधर इनके कंट्रोल पड़े हैं, उधर इनकी डोरियां पड़ी हुई हैं। जो वो कहेंगे ये करेंगे। अगर रूस सस्ता तेल बेच रहा था, जो हम उनसे मुआहदा कर रहे थे कि 30% कम कीमत पे तेल रूस से खरीदें, हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे रूस का तेल खरीद रहा है। जब ये 60 रुपए लीटर बढ़ा रहे थे डीजल और पेट्रोल, तो हिंदुस्तान में 25 रुपए कम कर रहे थे। हाँ, सुने जरा, अब मैं फर्क आपको बताता हूं। जो हुकूमत आई थी आपके लिए और जो हुकूमत आई थी अपने करप्शन के केसेस खत्म करने में, उसमें क्या फर्क है? हमने 200 अरब रुपए की सब्सिडी रखी। हमने फैसला किया कि तेल और पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए उसकी सबसे ज्यादा बुरे असरात हमारे गरीब, मजदूर, किसान, इस तबके पे पड़ते हैं। हमने फैसला किया कि 200 अरब रुपए की सब्सिडी देके हमने बजाय कीमत बढ़ाने के, हमने 10 रुपए कीमत कम की डीजल और पेट्रोल की, और 4 रुपए यूनिट बिजली के कम किए। क्यों किए? हमारे पे भी प्रेशर था, IMF का हमारे पे भी प्रेशर था, लेकिन हमने फैसला किया कि हम अपने लोगों के ऊपर मजीद और बोझ नहीं डाल सकते। हमने बचाया लोगों को। इन्होंने महंगाई मार्च की कि जी लोगों के ऊपर महंगाई से लोग डूब रहे हैं, इन्होंने माशी कत्ल कर दिया लोगों का। महंगाई मार्च हर रोज टीवी के ऊपर कि जी महंगाई और हुकूमत को हटाना चाहिए महंगाई के ऊपर। और आज देखें, 2 महीने हुए इनको आए, इन्होंने 2 महीने में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी है। बल्कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इन्होंने की है। इनकी स्टेटमेंट्स देखें, अब तो सोशल मीडिया है, आप अपने मोबाइल पे 3 महीने पहले ये क्या कह रहे थे कि इमरान खान को तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। ये सिर्फ 3 महीने पहले कह रहे थे। तो इन्होंने क्या, बस इन्होंने कहा कि आपको कि ना बिजली की, ना तेल की, ना इसकी पेट्रोल की, ना उसकी कीमत नहीं बढ़ानी। अब सुने जरा, एक मिनट सुने सर। अल्लाह याद रखे, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। तो 3 महीने में
सारी कौम के सामने सच आ गया जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली सिर्फ 3 महीने में। सुनो सुनो सुनो, और अभी यही नहीं, सिर्फ अभी ये सिर्फ डीजल, पेट्रोल और बिजली नहीं बढ़ी, अभी मजीद और बढ़नी है। इनका वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने आगे कहा जी अभी कौम को कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी और महंगाई आपके ऊपर आने वाली है। सिर्फ वो ही नहीं बढ़ी, घी की कीमत किधर गई है? कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे घी की कीमत बढ़ी है? उसके बाद आटा, चीनी, यानी एक एक चीज, चावल, जो भी चीजें आम आदमी खाने, सब चीजें बढ़ गई। और ख्वातीन को तो बेहतर पता होगा कि किस तरह चीजें बढ़ी हैं। अब मेरा आप सबसे पाकिस्तान के मजदूरों को आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन बार बार लॉकडाउन लगाने का कहती थी, लॉकडाउन कर देते तो मजदूर अपना घर कैसे चलाता, उनको निचले तबके की फिक्र ही नहीं है। के दबाव के बावजूद लॉकडाउन से इनकार किया, आवाम को वबा से भी बचाया, मईशत भी बचाई। इमरान खान का इस्लामाबाद में खिताब, कहा मौजूदा हुक्मरानों के पैसे बाहर पड़े हैं, अमेरिका ने इसीलिए इन्हें मुसल्लत किया है। और गुज़श्ता हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, तवानाई शोबे को 11,000 अरब की सब्सिडी दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं बिजली की कीमतें गुज़श्ता साल बढ़ाई गई, नोटिफिकेशन अब आया है। कभी इन्होंने लॉन्ग मार्च की, मैंने तो जब ये बिलावल ने कम पे टांगने वाली मार्च की और उससे पहले फजलुर रहमान ने 2 दफा लॉन्ग मार्च की, मैंने खुद कहा कि खाना भी भिजवाऊंगा, कंटेनर भी दे दूंगा। हमने कभी कोई कंटेनर रखा, ना इनका रास्ता रोका, ना इनको पकड़ धकड़ की। इन्होंने सहाफियों के ऊपर जो कर रहे हैं, आज जो सहाफत की आजादी है वो खतरे में है। FIRs काटी जा रही हैं, वो सहाफी जो सच बोलते हैं उनको भगाया हुआ है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। हमारे जमाने में हम फेक न्यूज की बात करते थे, यहां ये मुंह बंद कर रहे हैं सहाफत का। फिर मीडिया हाउसेस को पैगाम जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कवरेज ना करो, और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्ट लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये जब से इख्तिदार में आए हैं, ये सारे पाकिस्तान का निजाम तबाह कर रहे हैं, इंसाफ का निजाम तबाह कर रहे हैं। और अगर ये रह गए, ये वो नुकसान करेंगे इस मुल्क को। अगर ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे कोई दुश्मन नहीं कर सकता कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे। अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके, धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना, कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। और मुल्क जब तबाह होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि उसके पैसे चोरी होते, जब इदारे तबाह होते मुल्क तबाह हो जाता है। तो मजदूरों तैयार हो जाओ, मैं आपको कॉल दूंगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ। यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने अपोजिशन के दबाव के बावजूद लॉकडाउन से इनकार किया, अवाम को वबा से भी बचाया और मुईशत को भी बचाया। कहा कि मौजूदा हुक्मरानों के पैसे बाहर पड़े हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, बजट इजलास के दौरान सिंध असेंबली अखाड़े में तब्दील हो गई। पीटीआई और पीपी अरकान आमने सामने आ गए। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अपोजिशन रुकन को किताब दे मारी। पीपी की कुलसुम चांडियो और दुआ भुट्टो में भी हाथापाई हुई। कुलसुम चांडियो ने दुआ भुट्टो का मोबाइल छीन कर मुनव्वर वसान को दे दिया।
PPMPA मुनव्वर वसान मोबाइल लेकर भाग गए। यहाँ आपको बताएं कि सिंध असम्बली में हंगामा आराई हुई, एक दूसरे को किताबें भी मारी गई। इसी पर बात करेंगे, संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा, इस तरह की सूरत हाल जो पेश आई है, क्या इसको रोकने के लिए वहाँ कोई नहीं था? देखिए, डिप्टी स्पीकर की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि आप झगड़ा ना करें, अपने डेस्कों पर जाकर बैठें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान वज़ीर आला सिंध की दाइश के सामने आए, शोर शराबा किया, पीपल्स पार्टी की क़यादत के जब बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ये झगड़ा बढ़ गया। जब शर्जील मेमन अपनी डेस्क से उठे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से लड़ने के लिए आगे बढ़े, जिसके बाद धक्कम पेल हुई और गुस्सम गुस्सा हो गए। शर्जील मेमन के हाथ में जो किताबें पड़ी थी वो उन्होंने PTI के अरकान की जानिब से की, उनकी जानिब से जो बजट बुक के लिए बैग दिए गए थे अरकान की जानिब से वो फेंके गए। न सिर्फ ये झगड़ा हुआ, उस दौरान दुआ भुट्टो जो रुकन सिंध असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस सारे मामले की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि पीपल्स पार्टी की कुछ चांडियों ने उनसे मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। मोबाइल फोन छीनने के दौरान ये दोनों खवातीन अरकान आपस में गुस्सम गुस्सा हुई, उनका मोबाइल छीन कर कुछ चांडियों ने मुनव्वर वसान को दिया और जो मुनव्वर वसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं वो दुआ भुट्टो का मोबाइल लेकर वहां से भाग गए। जिसके बाद ऐवान के अंदर भी एक जरगा हुआ, कोशिश की गई कि किसी तरह से मोबाइल वापस किया जाए, लेकिन दुआ भुट्टो को मोबाइल वापस नहीं मिला। अब ये मामला ठीक है संजय, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध असेंबली में आखिर आज हुआ क्या, जरा आप भी देखिए। सबका राइट है, सबका राइट है, सब प्रोटेस्ट करेंगे, सब प्रोटेस्ट, सबका राइट है, सबका राइट है, सबका राइट है, सब प्रोटेस्ट करेंगे, सब प्रोटेस्ट करेंगे, सबका राइट है, सब लोग प्रोटेस्ट करें, सबका राइट है, सबका राइट है। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो यार? क्या कर रही हो यार? अरे दे देना, क्या हो गया? क्या कर रहे हो? एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, गुज़श्ता माली साल में गरीबों की फलाह के लिए मुख्तस 14 अरब रुपए में से 1 रुपया भी खर्च ना करने वाली सिंध हुकूमत ने नए बजट में भी गरीबों के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगेरी से। जी मंसूर, बताइएगा। जी देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के लिए गुर्बत के खात्मे के लिए पुअर पीपल पैकेज शुरू किया गया था। हमने अपने नाज़रीन को गुज़श्ता हफ्ते बताया कि रवा माली साल ख़त्म होने को है, लेकिन गरीबों पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया और इस आइंदा माली साल के लिए फिर 26 अरब रुपए रखे गए, जिसमें 10 डिपार्टमेंटों को के लिए लिखा गया है कि वो गरीबों पे ये पैसे खर्च करेंगे। महकमा ज़राअत को 3 अरब रुपए दिए गए हैं ताकि वो खाद और पेस्टिसाइड, अद्वियात और जो बीज है उनमें ये खर्च करेंगे। लाइव स्टॉक वाले गरीबों को मुफ्त जो है जानवर लेके फराहम करेंगे। सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के जरिए 15 अरब रुपए खर्च किया जाएगा और जो डिसेबल और नादार जो लोग हैं उनके 25 करोड़ रुपए वहाँ पर खर्च होंगे। महकमा लेबर 50 करोड़ रुपए वहाँ से खर्च करेगा। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि महकमा तालीम में जो गरीबों की दाखिला होगी मुफ्त में उस दाखिलों पे 2 अरब रुपए के अखराजात आएंगे, वो पैसे रखे गए हैं। इसी तरह 10 महकमों के नाम लिखे गए हैं कि वो इस पे खर्च करेंगे। अब देखना यह है कि रवा माली साल की तरह ये गरीबों पे वाकई पैसे खर्च होंगे भी। ठीक है मंसूर, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का 1713 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया। बजट में सबसे ज्यादा रकम तालीम के शोबे में मुख्तस की गई है, जो बजट का 25% है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफा तजवीज़ किया गया। कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2022 और 23 का 1713 अरब
58 करोड़ रुपए का सूबाई बजट असम्बली में पेश किया। वजीर आला ने अंग्रेजी जुबान में बजट तकरीर करते हुए तालीम के शोबे को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया, जिसके लिए बजट में 326 अरब रुपए से जायद रकम मख्तस की गई है। इसी तरह सेहत के शोबे के लिए 206 अरब रुपए से जायद का बजट रखा गया है। वजीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% जबकि पेंशन में 5% तक इजाफे का ऐलान किया। मुराद अली शाह ने बजट तकरीर में बताया कि कराची की तरक्याती मंसूबों के लिए 118 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जिसमें सालाना सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 72 अरब रुपए, जिलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 5 अरब और बैरूनी इमदाद के तहत बनने वाले मंसूबों के लिए 41 अरब रुपए मख्तस होंगे। Total allocation for Karachi based scheme for next financial year is 118 billion rupees, which includes rupees 72 billion under provincial ADP, 5 billion under district ADP, and rupees 41 billion have been allocated under foreign funded project. सिंध के बजट में फूड आइटम सप्लायर्स के कमीशन चार्जेस पर सेल्स टैक्स 13% से कम कर 8% करने की तजवीज़ दी गई है। सिंध में सनतकारों पर आयद इंफ्रास्ट्रक्चर सेस खत्म कर दिया गया है। सिंध के 33 अरब सारे के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से फाइनेंस बिल पेश नहीं किया जाएगा। कोई फाइनेंस बिल नहीं है, तो इसलिए हम फाइनेंस बिल पेश नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने ना सिर्फ कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बट हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज करते हुए टैक्सेस अबॉलिश किए हैं और कम किए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। पंजाब असम्बली का बजट अजलास दूसरे रोज भी ताखीर का शिकार है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का ऐवान राह तक रहा है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल। मोहसिन बिलाल, बताइएगा पंजाब असम्बली के बजट अजलास की क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी में मौजूद हूँ और मैं सिर्फ आपको ये हकीकत बताना चाहता हूँ, ये बरकी आलात, यहाँ पर चलने वाला AC, लाइट्स और ये बिल जो होगा ये करोड़ों में होगा जब असम्बली सेशन ख़त्म होगा। और आज भी दूसरा रोज़ है बजट इजलास का जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। और ये जो ऐवान की राहदारियाँ हैं, ये जो कुर्सियाँ हैं, ये जो माइक हैं, ये स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतज़ार कर रही हैं कि वो आएँ और ये इजलास शुरू हो। इस असम्बली की नई इमारत पर 7 अरब रुपये लागत आई थी जब ये असम्बली है वो बनाई गई थी, लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि चौधरी परवेज ने अभी तक इसे अपनी अना का मसला बनाया हुआ है और पंजाब असम्बली का जो आज दोपहर 1 बजे इजलास बुलाया गया था वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। और सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर AC, पंखे और ये बड़की आलात चल रहे हैं। कल भी ऐसी सूरत हाल ही रही थी कि तकरीबन 6 घंटे के बाद इजलास शुरू हुआ था। इजलास शुरू हुआ, अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ गई थी और एक जानिब ये है सूरत हाल और दूसरी जानिब मुल्क में बिजली का बहरान है, जबकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई बिजली का बहरान नहीं है, सिर्फ चौधरी परवेज इलाही की अदा का मसला है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। बजट भी पास होगा और इसका बंदोबस्त भी होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की परवेज इलाही पर तनकीद। बोले, हम कहते हैं बजट पेश करने दो, ये कहता है IG को पेश करो, अब हम इसको अदालत में पेश करेंगे। हमजा शहबाज का कहना था स्पीकर और बनी गाला में बैठे शख्स की अना ख़त्म ही नहीं हो रही। असम्बली का इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनट में मुलतवी कर दिया जाता है। 12 करोड़ आवाम का बजट जैम कर रखा है। 12 करोड़ आवाम जो है कल इंतजार कर रही थी कि बजट में क्या आना है। आप जो स्पीकर बने बैठे हैं इस बिल्डिंग में करोड़ों खर्चा होता है। कल पूरे सूबे की मशीनरी मेरे साथ यहाँ पर बैठी रही, कोई अपना जो है खेल तमाशा करने तो नहीं आया था। ये शख्स जो बैठा है इसकी अना जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और जो बनी गाला में बैठा है उसकी अना भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर जब 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं तो तकलीफ होती है। फराह गोगी का नाम आता है तो मौसूम को तकलीफ होती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अरबों रुपए जो लंदन से पकड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, उसमें किस किस का कट है, ये जवाब दे इमरान नियाज़ी इस बात का। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है IG को पेश करो, इसको हम अदालत में पेश करेंगे, आवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। लंदन से बहरिया टाउन के 50 अरब रुपए की पाकिस्तान वापसी का मुआहदा वफाकी काबीना ने ओपन कर दिया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसने की और रकम किस सरकारी अकाउंट में आई, आज तक नहीं पता चल सका। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान और खातून अव्वल ने बहरिया टाउन से 458 किनाल जमीन ली,
खुफिया डील का खोज लगाने के लिए इमरान खान समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। वफाकी काबीना ने बहरिया टाउन और इमरान खान हुकूमत के माबैन लंदन से 50 अरब रुपए की पाकिस्तान वापसी का खुफिया मुआहदा अवाम के सामने पेश कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तहलका खेज इंकशाफ किया कि इमरान खान ने काबीना से मुआहदे की मंजूरी कोई दस्तावेज दिखाए बगैर ली। बदले में बहरिया टाउन ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को 450 कनाल जमीन, शहजाद अकबर को 5 अरब रुपए दिए। 50 अरब रुपया जो है वो कौम का गवाया गया और उसमें से जो है वो अपना हिस्सा जो है वो वसूल किया गया। वहाँ पे पब्लिक मनी जो है इन्होंने कंप्रोमाइज करवाई और उसके नतीजे में जो है इन्होंने ये रकम जो है ये वसूल की। वजीर दाखिला ने खुफिया डील को बेनकाब करने के लिए इमरान खान समेत सबकी गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। कैबिनेट कमेटी इस बारे में अपनी इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करके जो भी मुतलका अदारा है वो नैब हो या वो FIU उसको भेजेगी और वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने के बाद अगर वो समझें कि ये सबूत काफी हैं वो उनको अरेस्ट करें। वजीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा बहरिया टाउन की लंदन में जब्त की गई जो रकम कौमी खजाने में आनी चाहिए थी वो मलिक रियाज को वापस कर दी गई। रकम कैसे वापस लाएगी वजारत खारजा समेत कहीं भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ना सिर्फ कि किसने वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे साइन की उसको बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, बल्कि सारी की सारी रकम बगैर टैक्स अदा किए सुप्रीम कोर्ट में उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो बहरिया टाउन की थी एडजस्ट कर ली जाए। ये है साहब हकीकत हमारी सादिक और अमीन होने। वुज़रा ने बताया अलकादर ट्रस्ट को अराजी की मुंतकिली के मुआहदे पर साबिक खातून अव्वल और बहरिया टाउन के मालिक के दस्तखत हैं। इमरान खान भी इस इदारे के ट्रस्टी हैं। यही जमीन बाद में फराग गोगी को मुंतकिल की गई। काबीना कमेटी तहकीकात करके इस मेगा स्कैंडल की तह तक पहुँचेगी। हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाली रकम मलिक रियाज को वापस कैसे लौटाई? बरतानिया में होने वाली तहकीकात में मलिक रियाज फैमिली के 14 करोड़ पाउंड जो पाकिस्तान को मिलने थे उसकी सेटलमेंट कैसे हुई? मुआहदे को स्टेट सीक्रेट कैसे करार दिया गया? समा सब तफसीलात सामने ले आया। जी रिपोर्ट जमा कराइए खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तुम कल वो कहंदी मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक। हीरा दो लेटर लो। जिस खत के लिए हीरा देने और लेने की बात हो रही थी उसमें क्या था? समा सब सामने ले आया। 2018 और 19 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अहमद अली रियाज मलिक और फैमिली के तकरीबन 14 करोड़ पाउंड मुंजमद किए। बरतानिया ने ये रकम पाकिस्तान को वापस की। दिसंबर 2019 में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने काबीना डिवीजन को खत लिखा, दावा किया कि मलिक फैमिली ने NCA से अदालत से बाहर मुआहदा कर लिया है। रकम पाकिस्तान में मखसूस अकाउंट्स में मुंतकिल की गई है। शहजाद अकबर ने लिखा कि मुआहदे की तफसीलात खुफिया रखी जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान राजदारी का मुआहदा करेगी। काबीना की मंजूरी के बाद ये लेटर सील कर दिया गया जिसे सिर्फ अदालती हुक्म पर खोला जा सकता है। अकबर रियाज मलिक से मुबैना गुफ्तगू में फराह खान ने उसी खत की यकीन दहानी कराई थी। मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। इमरान खान पर इल्जाम है कि उन्होंने ये डील अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल जमीन और बनी गाला में फराह खान के लिए जमीन के एवज की। राना सनाउल्लाह का दावा है कि PTI सरकार ने इस डील में 5 अरब रुपए भी लिए। इसी पेश ऑफ पर बात कर लेते हैं। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशोरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिद साहब, इतनी बड़ी डील, इतना बड़ा मुआहदा, क्या 2 अफराद के दरमियान मुआहदे को स्टेट सीक्रेट कहकर बंद किया जा सकता है? नहीं, ये एक डील नहीं थी, 2 डील थी। मैं आपको एक इंकशाफ करने लगा हूँ कि जो शहजाद अकबर ने खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त वो चेयरमैन थे एसेट रिकवरी यूनिट के। एक डील ये थी जो आपने बताई है कि जो पैसा मुंजमद किया गया था जब नेशनल क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसको पाकिस्तानी इदारे फैसिलिटेट कर रहे थे, जहाँ पर सारी डिटेल दी गई थी। 140 मिलियन पाउंड जो कि आज के कम से कम 35 अरब रुपए बनते हैं, ये मुख्तलिफ अकाउंट्स में फ्रीज कर दिए गए थे और ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को वापस आना था। ये एक डील थी जिसका पहले भी मालूम था, आज कैबिनेट में भी बताया है। दूसरी डील ये थी कि एक प्रॉपर्टी थी 1 हाइड पार्क लंदन में। ये प्रॉपर्टी हाल ही बहरिया टाउन ने ख़रीदी थी। ये हुकूमत पाकिस्तान को वापस आनी थी। डील का ये हिस्सा था। ये पैराग्राफ नंबर 4 है जो शहजाद अकबर ने उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को एक खुफिया ख़त लिखा था।
اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پارٹیز کے درمیان ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ یہ ہائیڈ پارک 1 جو کہ لندن کی پراپرٹی ہے یہ 2 سال کے اندر اندر بیچی جائے گی. پہلے یہ ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ ایجنٹ کو دی جائے گی, وہ میکسیمم 2 سال تک یہ پراپرٹی فروخت کرے گا لندن میں اچھی سے اچھی قیمت پر, اور یہ پھر پیسہ حکومت پاکستان کو دیا جائے گا. ان کے دسمبر 2021 میں اس پراپرٹی کو فروخت کر کے حکومت پاکستان کو یہ پیسہ واپس آنا تھا, نمبر 1. اور سیکنڈلی جو کہ فروزن منی تھی جو کہ 35 ارب روپے آج کے بنتے ہیں, یہ بھی حکومت پاکستان کو آنے تھے. یہ ایک ایگریمنٹ کیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے جب بحریہ ٹاؤن اور نیشنل کرائم ایجنسی کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو گئی. 2 حصے تھے, 2 ڈفرینٹ ایگریمنٹ تھے. ایک یہ تھا کہ ایک پیسہ 35 ارب روپے کا جو کہ بحریہ ٹاؤن کو حکومت پاکستان نے اس وقت مبینہ طور پر ڈیل کر کے واپس دے دیا جو کہ فروزن منی کا تھا. 2 مختلف اوکیزن پہ یہ پیسہ فریز کر دیا گیا تھا اور حکومت برطانیہ نے یہ پاکستان کو واپس کرنا تھا. دوسری یہ پراپرٹی تھی. آج تک یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پراپرٹی کیا نیوٹرل ایجنٹ کو دی گئی تھی, کیا اس کو بیچا گیا ہے, کیا حکومت پاکستان کو اس پراپرٹی کا پیسہ واپس آیا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے ایگزیکٹلی. ہائیڈ پارک 1 کا جو کہ پیراگراف نمبر 4 ہے, آپ ٹیلی ویژن سکرین پہ بھی دکھا سکتے ہیں, اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو یہ وہ ایگریمنٹ ہیں جو حکومت پاکستان نے کیے اس وقت, اور آج تک یہ معلوم نہیں. گوری صاحب آپ ساتھ رہیے گا. ماہر قانون کامران مرتضیٰ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈاکیومنٹ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہوا کرتا جب تک اس کا تعلق ملک کی سالمیت سے نہ ہو. وہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ پہلے بھی اس وقت بھی جب بات ہوئی تھی, جب اس کو جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ کو سیل کیا گیا تھا, یہ اس وقت بھی معاملہ مشکوک تھا, مگر بہرحال اس پہ مٹی ڈال دی گئی تھی اور ڈاکومنٹ کوئی بھی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہوا کرتا. ہاں اس طرح کے کوئی ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں جس کا ملکی سالمیت کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے, بظاہر پبلک کے بہت بڑے حصے سے, کسی ملک کی پبلک کے بہت بڑے حصے سے تعلق ہوتا ہے, اس میں اس طرح کے ڈیسیژن لیے بھی جا سکتے ہیں. مگر اس طرح سے کسی شخص کو فائدہ دینے کا جس کے بیوی بچی آپ کے گھر آتے جاتے ہوں, یہ ملکی سطح پہ جو ہے یہ حرکتیں جو ہے نا انتہائی نازب ہیں, اور اس کے خلاف جو ہے نا کم از کم آواز ضرور بلند کرنی چاہیے اگر کوئی لیگل ایکشن نہیں ہوتا. دیکھیے ایک ڈیسیژن لیا گیا اور جس سطح پہ ڈیسیژن لیا جائے اسی سطح پہ اس کو ریکال کیا جا سکتا ہے, یہ اصول ہے. اگر فرض کریے کسی عدالت نے کوئی ایک آرڈر پاس کیا تو وہ عدالت اپنا آرڈر ریکال کر سکتی ہے. اگر کوئی کیبنٹ نے کوئی ڈیسیژن لیا تھا تو وہ کیبنٹ جو ہے نا وہ اپنا آرڈر ریکال کر سکتی ہے. تو جو بھی اس کا فیصلہ کرنے کا جو فورم تھا وہی اپنا فیصلہ واپس لے سکتا. زاہد گفتگو آپ نے سنی کامران مرتضیٰ صاحب کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ مشکوک تھا اسی لیے اس کو سیل رکھا گیا. تو کس کس کی جانب سوالیہ نشان اٹھیں گے اب آپ سمجھتے ہیں اس پیش رفت سے؟ دیکھیے جو ابھی تک ڈاکومنٹڈ ریکارڈ آیا ہے اس میں باقاعدہ طور پر 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں تمام تر جو ڈیل تھی, مختلف ڈیل تھی, یہ ایک ڈیل نہیں تھی 2 ڈیل تھی, جو کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین اس وقت ساری یہ ڈیل کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, نمبر 1. اور اس وقت یہ وزیر اعظم کو بتایا گیا تھا پیراگراف نمبر 5 میں, اگر آپ اس لیٹر کو دوبارہ پڑھیں جو کہ سیکرٹ تھا, آج ڈسکلوز کیا گیا ہے کہ اگر حکومت پاکستان چاہتی ہے تو وہ باقاعدہ اپنی کیبنٹ سے اپروول لے کے حکومت پاکستان حکومت برطانیہ کو لکھ سکتی ہے, نیشنل کرائم ایجنسی کو. وہاں پر جو ایک ڈیڈ تھی 2 پارٹیز کے درمیان, بالکل سیاسی منظر نامے پر اہم اثرات اس کے مرتب ہوں گے. اس پیش رفت کے بے شکریہ زاہد, آپ اس حوالے سے تفصیلی طور پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. کام نکلوانے کے لیے کروڑوں کے ہیروں کے تحفے, سابق خاتون اول کو 3 نہیں 5 کیرٹ کا ہیرا دیا جائے پھر ہی کام ہوگا. کہ میں نے ہیرا منگوا دو, جی رپورٹ جمع کرائی ہے خان صاحب نے کہ میری گارنٹی ہے میں ختم کراواں گا. لال اکبر کا لیٹر بھی کم کل ہفتے سے پہلے معاوی ہوں. ملک ریاض اور بیٹی امبر کی مبینہ آڈیو لیک میں کس لیٹر کا ذکر تھا, سما نے کھوج لگا لیا. شہزاد اکبر جو ہے وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے اس وقت ہیڈ تھے. ملک ریاض کی مبینہ منی لانڈرنگ تھی جس کو ریکور کر کے قومی خزانے میں جمع کروانا تھا. یہ وہی لیٹر ہے, اس لیٹر کا چرچا جو ہے وہ آڈیو میں ہے, اور یہ بالکل ایک ملی بھگت جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے.
वफाकी काबीना इजलास में बरतानवी MCA और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज फैमिली की डील का तस्करा हुआ है। वफाकी काबीना ने एसिड रिकवरी यूनिट के हवाले से ज़ैली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है और बरतानिया में मलिक रियाज फैमिली के साथ क्या डील हुई है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया गया, ये तमाम चीजें जो है वो आवाम के सामने रखने पर इत्तेफाक। शहजाद अकबर साहब 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट हुआ। 5 अरब रुपया जो था उसने इनका हिस्सा जो है वो इनको अदा कर दिया। खबर वही जो सिर्फ समा पर।